Hello everyone, very good evening to everyone. How are you? Yes, I know you are waiting. So without any delay, without any ado, we will start soon. Okay. So first of all, tell me, what about your day? How was your day? Have you enjoyed your day so far? I hope आप सभी ने अपना डे एंजॉय किया होगा अभी तक. तो वेरी गुड इवनिंग अगेन एंड वेरी वार्म वेलकम टू दिस क्लास. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नीट के PYQs को डिस्कशन. क्योंकि हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का, so definitely we have to summarize the chapter, right? First of all, I will provide a summary to you, right, of this entire chapter. So as you can see, the topic is ionic equilibrium. One thing I want to say before we start, be ready with your notebook and pen, because you know these sessions are for previous year questions practice, right? So if you want to practice, you have to be ready with your notebook and pen. अगर आप नोटबुक और पेन के साथ रेडी रहेंगे, सो मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, तब तक आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको कुछ हिंट्स प्रोवाइड करूंगा एंड देन आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन एंड यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर. ओके, ग्रेट. सो वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून. सो लेट्स बिगिन विद द क्लास. सो आयनिक इक्विलिब्रियम, as you know very well, first of all I want to give an introduction of electrolytes. देखो इक्विलिब्रियम विच इन केस ऑफ आयंस, राइट, जब भी आयंस के केस में हम इक्विलिब्रियम पढ़े, वो क्या है? आयनिक इक्विलिब्रियम. लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, यू नो वेरी वेल, विच कैन, दो सब्सटेंसेस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट, इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के हो सकते हैं, लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दे कैन बी वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स like all strong acids, that means those can conduct electricity completely, like strong bases, or you can take salts of strong acid and strong base. Similarly, weak electrolytes like weak acids, you can take weak bases and salts of weak acid and weak base. Quickly give me some examples of strong acids, strong base, salts of strong acid and strong base. I am writing here Sa plus Sb. And similarly, give me some examples of weak acid, weak bases and salts of weak acid plus weak base. Quick everyone, quick reply. Strong acids, those acids which can dissociate or ionize completely, right, in aqueous solution, so are known as strong acids. Like they will provide H positive ions completely, like H2SO4, like HNO3, etc. Strong bases, similarly you can take NaOH and KOH, etc. Salt like Na2SO4, like NaCl, simplest example. Weak acids like CS3COOH, acetic acid. Weak base, like you can take weak base NH4OH, ammonium hydroxide. And salts like you can take ammonium acetate, NH4, or you can take ammonium chloride. Simple. This is weak acid, weak base? No. This is the salt of strong acid, weak base. So what is the salt of weak acid, weak base? Weak acid like you can take CS3COOH, and weak base like you can take NH4OH. So they will combine and you will get CS3COO negative NH4 positive ammonium acetate. Clear? So these are electrolytes. Then after that, I want to go with the discussion of acids and bases definition. So there are various concepts of acid and bases. First concept क्या है? The historical concept. Like historical concept, acids are sour in taste, bases are bitter in taste. Let's divide this page into half. So what you can see, like acids are sour in taste, bases are bitter in taste. Acid can turn blue litmus to red, bases can turn red litmus to blue, etc. These are some historical like concepts, right? Then after that, some other concepts like Arrhenius concepts. What are Arrhenius acids and what are Arrhenius bases?
those acids which can provide H positive ions are known as Arrhenius acids, and those substances which can provide OH negative ion in presence of water or in aqueous solutions are known as Arrhenius bases. Example, as I told you already, H2SO4, HNO3, HCl, HCOOH, CS3COOH, etc. KOH, NaOH, MgOH whole twice, CaOH whole twice, etc. This is about Arrhenius acids and Arrhenius bases. Then the next concept came, that is Bronsted-Lowry concept, right? Bronsted-Lowry concept, according to that concept, acids are those which can provide H positive ions and bases are those which can accept H positive ions. Bases are those which can accept H positive ions. For example, H2SO4 is a Arrhenius acid as well as Bronsted acid, Bronsted-Lowry acid, right? But NH3 is Bronsted base. Bronsted base. Next, Lewis acid and base concept. According to Lewis acids, electron pair acceptor are known as acids. Electron pair acceptor, like CO2 is acidic in nature, SO2 is acidic in nature. Electron pair acceptor is acidic in nature, and electron pair donor are basic in nature. Electron pair donor, like ammonia is base. Ammonia is a base. So you can take these types of example. Like H2O can act as an acid as well as a base. So some substances are there जो acid की तरह भी behave कर सकते हैं और base की तरह भी. उन्हें हम क्या कह देते हैं? Amphoteric. क्या कह देते हैं? Amphoteric substance. ठीक है? So let's move to the next point. All substances that conduct electricity in aqueous solutions, उन्हें हम क्या कहते हैं? Electrolytes. नाम ही बता रहा है. Electrolytes can conduct electricity. Clear? Simple एकदम. Let's move to the next concept. Acid, bases and salts are electrolytes, and the conduction of electricity by their aqueous solution is due to anions. by acid, bases, salts में है क्या? मान लीजिए कोई भी आपने एसिड लिया HCl, वो ब्रेक डाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्या डिसोशिएट होकर आयनाइज होकर क्या देगा? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव. तो एक कटायन प्रोवाइड कर रहा है, एक अनायन प्रोवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली इसी टाइप से बेस अनायन कटायन प्रोवाइड करेंगे. तो एसिड्स एंड बेसिस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी by their aqueous solution due to anions and cations produced by the dissociation or ionization of electrolytes in aqueous solution. The strong electrolytes are completely dissociated, जो बने होते हैं strong acid, strong bases से. In weak electrolytes there is equilibrium, मतलब completely dissociation और ionization नहीं होता, partially होता है. कैसा होता है? Partially dissociation और ionization between the ionized and unionized electrolyte molecules. मतलब आप ये कह सकते हैं strong वाले केस में आपके पास ओनली आयंस रहेंगे, कोई मॉलिक्यूल और अनआयनाइज्ड फॉर्म नहीं रहेगी. बट इन केस ऑफ वीक आपके पास इनिशियल मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल आपने लिया NH4OH, तो आपके पास NH4OH का मॉलिक्यूल भी रहेगा और साथ में NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, मतलब आयंस भी रहेंगे और मॉलिक्यूल भी रहेगा. इस टाइप से एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू अरेनियस. मैंने आपको वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस बताई दी हैं. According to Arrhenius, acids gives hydrogen ions while bases produce hydroxyl ions in their aqueous solution. ये किसके अकॉर्डिंग है? Arrhenius के. तो Arrhenius एसिड का कोई एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको बताया, H2SO4, HNO3, HCl, CS3COOH, HCOOH, etc. While bases produce hydroxyl ions in their aqueous solution. For example, KOH, NaOH, और क्या ले सकते हैं? BaOH whole twice, CaOH whole twice, etc. MgOH whole twice. Bronsted-Lowry concept क्या कहता है? On the other hand, defined an acid as a proton donor, H positive donor. वो तो Arrhenius भी कह रहा था, बिल्कुल ठीक बात है. बट बेस एज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर. Arrhenius से कुछ और बोला और इसने कुछ और बोला. इसने कहा प्रोटॉन एक्सेप्टर को बेस बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, फॉर एग्जाम्पल वाटर भी हो सकता है, H2, राइट. तो प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम क्या बोल देंगे? बेस. व्हेन ए Bronsted-Lowry एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस, जब एक Bronsted-Lowry एसिड किसके साथ बिहेव करेगा? बेस के साथ. तो आप देखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए मैंने लिया NH3 जो कि एक बेस है, और Bronsted-Lowry एसिड क्या है? एक HCl. मान लीजिए एक Bronsted-Lowry एसिड है क्योंकि H पॉजिटिव डोनेट क्या करना है?
H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है, और जो H पॉजिटिव प्रोटॉन एक्सेप्ट करे वो बेस, तो ये बेस है, रिएक्ट कर गए। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, छोटी छोटी क्लासेस में स्मॉलर ग्रेड्स में हम पढ़ते हैं अपनी लोअर ग्रेड्स में। ये हो गया NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो एक बेस से बनने वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं इसका कॉन्जुगेट एसिड, क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। और एसिड से बनने वाले को हम बोलेंगे, एसिड से बनने वाले आयन को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। ये हो गया कॉन्जुगेट बेस। मतलब हमारे पास दो पेयर आ जाते हैं, बेस एसिड, एसिड और बेस। तो एसिड बेस के दो पेयर हमारे पास आ चुके हैं। कितने पेयर, एसिड बेस के हमारे पास कितने पेयर हैं, दो पेयर। तो व्हेन ए ब्रोंस्टेड एसिड रिएक्ट विद अ बेस इट प्रोड्यूसेस इट्स कॉन्जुगेट बेस, इट्स प्रोड्यूसेस इट्स कॉन्जुगेट बेस एंड ए कॉन्जुगेट एसिड कोरस्पॉन्डिंग टू द बेस विद व्हिच इट रिएक्ट्स। ए कॉन्जुगेट पेयर ऑफ एसिड बेस डिफर्स ओनली बाय वन प्रोटॉन। बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं NH3 और NH4 पॉजिटिव को, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, इन दोनों में जो डिफरेंस है सिर्फ एक प्रोटॉन का है। नॉट ओनली दिस, दूसरे पेयर को ले लो HCl और Cl नेगेटिव, अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूं तो सिर्फ एक डिफरेंस है H पॉजिटिव का। किसका डिफरेंस है, H पॉजिटिव का। आई होप यहां तक आपको ये बातें क्लियर होंगी। मूव करते हैं लुईस के कॉन्सेप्ट में। जीएन लुईस ने क्या कहा, जीएन लुईस ने फर्दर जनरलाइज कर दिया बातों को। डेफिनेशन ऑफ एन एसिड एज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, उन्होंने जो बातें करी वो इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में करी। उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो आपके एसिड्स होंगे, और पर्टिकुलरली बात करो तो लुईस एसिड्स, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे वो लुईस बेस होंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुईस बेस। क्या हमारे पास कुछ एग्जांपल है, बिल्कुल, जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, जैसे BF3, जैसे FeCl3, जैसे AlCl3, ये हमारे क्या है FeBr3, लुईस एसिड क्या है, जिनके पास जगह होगी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, वो क्या होंगे हमारे लुईस एसिड। और जो डोनेट करेंगे वो क्या होंगे लुईस बेस। जो लॉन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज जैसे NH3 हो गया, H2O हो गया, RNH2 हो गया, एटसेट्रा, ये हमारे किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, लुईस बेस की तरह। किसकी तरह, लुईस बेस। लुईस बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड लुईस एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। उसके बाद आ जाते हैं एक्सप्रेशन फॉर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। अब वीक एसिड्स क्या होते हैं, कंप्लीटली तो हो नहीं रहे, इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो उनके लिए आ जाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिन्हें हम कह देते हैं, मान लीजिए कोई भी एसिड लिया HA, तो वो इक्विलिब्रियम में चला गया, वीक एसिड है, तो वो ब्रेक डाउन होगा इस तरीके से H पॉजिटिव A नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो HA एक वीक एसिड है और H पॉजिटिव कटायन बना और एक अनायन बना। ये तो प्रोटॉन है और ये उसका कॉन्जुगेटेड आयन है एक तरीके से, राइट, ये उसका क्या है कॉन्जुगेटेड आयन। अब हुआ क्या, इसका आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम बोलेंगे K, और क्योंकि ये एसिड है तो बोल देंगे एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब क्योंकि ये डिसोशिएट होना है तो इसको बोल देंगे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे हम K लिखते थे, जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है H पॉजिटिव की, और अगर इसके आगे कुछ स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता तो वो इसकी पावर में आ जाता, राइट। Then we have to write A negative anion and write down the stoichiometric coefficient in front of A negative as a power, right, of A negative, concentration of A negative. Then put down here concentration of HA. This is acid dissociation constant. Similarly, you can go with the base, weak bases. Weak acids and weak bases are developed using Arrhenius definition. So you can see here, as you know very well, if I am taking any base like BOH, example NaOH, KOH, calcium hydroxide, barium hydroxide, magnesium hydroxide, strontium hydroxide, etc. You can go with this B positive, then OH negative. Then you can see here this is a base, but it is a weak base. What type of base? Weak base. Perfect. So BOH is providing B positive and OH negative. Now the point is, how can we write this K? K is nothing, that is equilibrium constant. अगर मैं K भी लिख दूं, अगर मैं क्या लिखता हूं Kb, then we can write B positive, OH negative and divided by concentration of BOH. The power is 1 because each of one reactant and product, BOH, B positive and OH negative, all are having only one as a stoichiometric coefficient in front of them.
this is Kb and this one is Ka. These are the expressions for ionization constant of weak acids and weak bases, right? Similarly, you can go with Ka, you can write in terms of alpha, that is degree of dissociation. So you will get C alpha square upon 1 minus alpha. Ka is equal to C alpha square upon 1 minus alpha when you will put all the values. So the degree of ionization and its dependence on concentration and common ion are discussed. ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं. डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की टर्म्स में जो Ka होगा, भाई मान लीजिए आप HCl को ब्रेक डाउन कर रहे हैं या नॉट, चलिए और लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ HCl. सो यू विल गेट H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. सो सपोज द concentration is C and the decrement is C alpha, right? At C alpha equilibrium is attained, then it is C alpha, it should be C alpha. So you can write Ka at equilibrium C alpha into C alpha upon C 1 minus alpha. C to C cancel, C alpha square upon 1 minus alpha. One thing, suppose the alpha, the degree of dissociation is very, very small. The degree of dissociation is very, very small. It means the Ka is C alpha square upon 1 minus alpha. This is not only Ka, आप इसे Kb भी लिख सकते हैं, right? So if alpha is very, very small, it means you can say what, कि अल्फा बहुत ज्यादा स्मॉल है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम हुआ है. अगर ऐसा है तो यू कैन राइट 1 माइनस अल्फा नियर अबाउट 1. सो यू कैन से देन Ka becomes C alpha square and C becomes Ka upon alpha square और अल्फा becomes अंडर रूट Ka by C. अल्फा becomes अंडर रूट Ka by C. तो ये कुछ लिटिल स्मॉल फॉर्मूलेज हैं जो आपको लर्न रखने हैं और हमेशा अपने माइंड में रखने हैं. क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द पीएच. पीएच स्केल क्या कहता है? पीएच एक्चुअली, पीएच मतलब पोटेंज, पीएच मतलब पुषांश. ये इसका मतलब क्या है? पावर. पावर किसकी? हाइड्रोजन की. मतलब ये हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करता है. एक इसका फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है. वी आर नॉट डिस्कसिंग द डेरिवेशंस, हाउ टू गेट दीज फॉर्मूलाज. हम उस बात को डिस्कस नहीं कर रहे हैं. हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं, किस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस टाइप से आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है. क्लियर? तो द डिराइव्ड फॉर्मूला ऑफ पीएच इज माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, यू कैन से नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. pH is nothing, that is the negative logarithm of hydrogen ion concentration for the hydrogen ion concentration activity has been introduced and extended to other quantities. POH तक भी गई. एक बार हमें pH पता लग गया जिसको हमने बोला माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, तो हमने POH को भी बोल दिया. फिर POH क्या बोल दिया? माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव. फिर हमने pKa को भी बोल दिया माइनस लॉग ऑफ Ka. फिर pKb को भी बोल दिया माइनस लॉग ऑफ Kb. एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb. फिर pKw जो कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है उसको क्या बोल दिया? माइनस लॉग ऑफ Kw. Kw क्या होता है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. तो pKw क्या आ गया? माइनस लॉग ऑफ Kw. The ionization of water has been considered and we know that the equation becomes pH plus POH is equal to pKw. मतलब आप ये कह सकते हैं कि concentration of H positive और concentration of OH negative का जो multiply होता है that is Kw. That is what? Kw. अगर आप दोनों साइड लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ H पॉजिटिव प्लस लॉग A इंटू बी, तो लॉग A प्लस बी होता है, लॉग ऑफ OH नेगेटिव, दिस इज लॉग ऑफ Kw. तो ये छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान रखना है. मल्टीप्लाई विद नेगेटिव बोथ साइड, तो ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव और ये बन जाएगा आपका माइनस लॉग ऑफ Kw. तो वो कह रहा है कि माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव तो pH होता है, ये POH हो गया और ये pKw हो गया, तो pH प्लस POH इक्वल टू pKw. इस तरीके से भी हम इनको लिख सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग विद द derivation of these formulas. Okay, I am just giving you a summary points. Okay, so the ionization of water has been considered and we know that the equation pH plus POH is equal to pKw. या फिर आप कह सकते हो pH plus POH is equal to 14. क्या कह सकते हो? pH plus POH is equal to 14. ठीक है.
तो पीएच प्लस पीएओएच अगर 14 होता है तो इसका मतलब पीकेडब्ल्यू इक्वल टू 14। पीकेडब्ल्यू क्या होगा 14। इसका मतलब केडब्ल्यू क्या होगा 10 रेज टू द पावर -14। क्या होता है केडब्ल्यू 10⁻⁻14। कैसे आया 10⁻⁻14 लिख देता हूँ, इसको 4 लिख गया गलती से। तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर हमारा जो केडब्ल्यू है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव है। चलिए इस बात से भी हटते हैं, अगर हमारा पीकेडब्ल्यू क्या होगा इनका लॉग है ना, तो पीकेडब्ल्यू क्या होता है माइनस लॉग ऑफ केडब्ल्यू। पीकेडब्ल्यू की वैल्यू कितनी है माइनस के उधर लग जाएंगे -14 और लॉग के उधर जंप कराएंगे तो 10 की पावर में आ जाएगा क्योंकि इसका बेस क्या है 10। तो केडब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई 10 रेज टू द पावर -14। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद आते हैं सॉल्ट और उनके हाइड्रोलिसिस पे। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस अंडरगो हाइड्रोलिसिस एंड एक्वस सॉल्यूशन, राइट। और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात करें तो वो तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, तो उनको केसेस को हमें नहीं पढ़ना। बात आती है सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। मैं आपको फॉर्मुलेज भी दिखाऊंगा सारे। सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज डिस्कस्ड एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंट्रोड्यूस्ड एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं KSP। सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज डिस्कस्ड। कैसे आप कहेंगे, मान लीजिए आपने कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट लिया AB2 टाइप का, स्प्रिंगली सॉल्युबल है, ये कैसे डिसोशिएट होगा, ये डिसोशिएट होगा इक्विलिब्रियम में। मान लीजिए ये बन गया A पॉजिटिव और क्या बन गया 2B नेगेटिव, A पॉजिटिव एंड 2B नेगेटिव। मान लीजिए इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी S, इसकी कितनी है 0, इसकी कितनी है 0, ठीक है। तो हुआ क्या, इसकी सॉल्युबिलिटी S, तो इक्विलिब्रियम पे अगर हम बात करें तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आ जाएगी S और इसकी कितनी आ जाएगी 2S। अगर आपको KSP लिखना है तो आपको क्या करना होगा, A पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी कितनी S और उसकी पावर कितनी 1 और इसकी 2S इसकी सॉल्युबिलिटी और पावर में आएगा इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। तो KSP की वैल्यू आ जाती है S इंटू 2 टू द 4S क्यूब, मतलब इसकी वैल्यू आ जाती है 4S4। इस तरीके से आपको AB, AB2, AB3 इन टाइप के सॉल्ट्स की क्या सॉल्युबिलिटी पता कर लेनी है। इस तरह के सॉल्ट की आपको क्या कर लेनी है सॉल्युबिलिटी को पता कर लेना है और उनको याद रखना है। इट्स रिलेशनशिप विद सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इज एस्टेब्लिश्ड। द कंडीशंस ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ द सॉल्ट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन और देयर डिसोल्यूशन इन वाटर आर वर्कड आउट। मतलब सॉल्युबिलिटी कितनी है, प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा, कितना प्रेसिपिटेशन होगा, ये सारी बातें हमें KSP बता सकता है और KSP इन बातों को डिस्कस कर सकते हैं KSP की हेल्प से। उसके बाद आ जाता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। भाई ओस्टवाल्ड पॉइंटेड आउट दैट द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज एप्लीकेबल टू आयनिक इक्विलिब्रियम। उसने क्या देखा कि जितना भी हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाया था उसे हम एप्लीकेबल कर सकते हैं किसमें, आयनिक इक्विलिब्रियम में। मतलब उन्होंने कहा कि K, अगर मान लीजिए कोई चीज है A B और वो ब्रेक डाउन हो रही है किसमें A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव में और मुझे उसका K लिखना है, राइट। तो हाउ कैन आई राइट द K, सिंपल A पॉजिटिव B नेगेटिव डिवाइडेड बाय AB। तो K इज इक्वल टू A पॉजिटिव B नेगेटिव डिवाइडेड बाय AB। इसका मतलब ये हुआ कि ओस्टवाल्ड ने ये बात पॉइंट आउट की थी कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को हम आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। मतलब K इज इक्वल टू A पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन B पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB। A पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा एट इक्विलिब्रियम, B पॉजिटिव B नेगेटिव की C अल्फा और AB की 1 माइनस अल्फा इंटू C और इंटू में क्या आ गया K। तो K क्या आ गया, नॉट इंटू में K क्या आ गया यहाँ पे C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसको आप K A भी लिख सकते हैं और K B भी लिख सकते हैं। साथ में आप क्या कर सकते हैं, इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल सकते हैं। और अगर एसिड है तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस है तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है या डिसोसिएशन है और जितना छोटा अल्फा होगा उतना क्या होगा 1 माइनस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। इनका बेस भी इसलिए लिखा हुआ 10, कितना लिखा हुआ बेस 10, ताकि हम इसको यूज ना कर पाए, राइट एज ए। बट अगर बेस 10 लिखा हुआ है तो हम इसको e टू द पावर में यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो फिर 10 की पावर ही बनेगी। मतलब pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10। अगर यहाँ e होता तो वो e की पावर में जाता, अब 10 है तो 10 की पावर में जाएगा कुछ भी चीज, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव हम निकाल सकते हैं, pH गिवन है तो H पॉजिटिव और pH गिवन है, अगर pH निकालना है तो H पॉजिटिव गिवन होगा। pH इज इक्वल टू लॉग 10 अपॉन 1 अपॉन H पॉजिटिव। POH को भी ऐसे बोल देते हैं,
POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 OH नेगेटिव। तो POH क्या आ जाएगा, log 10 1 / concentration of OH नेगेटिव। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया POH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log 10 1 / POH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ OH नेगेटिव POH। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है PH इज इक्वल टू log 10 1 / H पॉजिटिव, इसको लिख सकते हैं क्योंकि पावर कहाँ चली जाती है आगे। उसी तरह POH को लिख देंगे log 10 1 / OH नेगेटिव। ठीक है, POH हमने लिख दिया। कितना लिखा POH, POH क्या आ गया, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। अगर माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव POH है तो माइनस चला जाएगा उधर और ये आ जाएगा 10 की पावर, मतलब 10 OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 10 की पावर माइनस POH। POH इज इक्वल टू माइनस log 10 OH नेगेटिव, और आप लिख सकते हैं log 10 1 / log 10 OH नेगेटिव। PH प्लस POH इज इक्वल टू होता है 14। PH प्लस POH इज इक्वल टू होता है PKW। PK होता है माइनस लॉग ऑफ K और log 10, log का बेस क्या है 10, ये ध्यान रखना है। ये कुछ इंपोर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। PK इनवर्सली होता है Ka के और K डायरेक्टली होता है एसिडिक के, मतलब PK इनवर्सली हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ के। सिमिलरली PKB क्या होता है, PKB इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KB। PKB इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KB, बेस 10 है तो इसको भी आप किसी भी टर्म में लिख सकते हो। PKB इनवर्सली होता है KB के और इनवर्सली होता है किसके, बेसिक स्ट्रेंथ के, क्योंकि KB डायरेक्टली होता है बेसिक स्ट्रेंथ के। नेक्स्ट आता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, मतलब KW हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आयनिक प्रोडक्ट मतलब वाटर के जो आयन्स है उनका प्रोडक्ट कर दो। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। जब H पॉजिटिव या OH नेगेटिव ले लिया जाता है और इनका जो प्रोडक्ट होता है उसे बोल देते हैं KW, इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन का। रिपीट करता हूं तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड H3O पॉजिटिव, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, KW से। It is denoted by KW. KW is nothing, that is the ionic product of water. KW is ionic product of water. अगर मैं बात करूं तो KW इज इक्वल टू क्या होता है, Ka इंटू KB। KW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू AB। ये ड्राइव्ड फॉर्मूला है जो मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप इन चीजों को लिख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, KW क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव का मल्टीप्लाई। सिमिलरली KW क्या है, Ka इंटू KB का भी मल्टीप्लाई। ठीक है, KW इक्वल टू होता है 10⁻⁻14 और PKW होता है 14, क्योंकि PH प्लस POH होता है PKW के इक्वल। तो ये सारी स्मॉल चीजें आपको क्या रखनी है, अपनी माइंड में रखनी है। ये आगे नेक्स्ट वैल्यू PKW और PKA प्लस PKB। PKW क्या होता है, PKA प्लस PKB। ये सारी बातें एट 25 डिग्री सेल्सियस पे मैंने बताई है, जो भी 14 वाली बात है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो पीएच की वैल्यू भी चेंज होगी, और जो पीएच स्केल है ना, जो आप 0 से 14 सोच रहे हो, वो भी चेंज हो जाता है। वो 0 से 13 भी चला जाता है जब न्यूट्रल वैल्यू 6.5 आ जाती है। वो 0 से 15 भी चला जाता है जब न्यूट्रल वैल्यू 7.5 आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि पीएच सिर्फ 14 तक ही हो सकता है, हमेशा 14 रहेगा, नहीं, ये एट 25 डिग्री सेल्सियस पर बात होती है। केडब्ल्यू की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻14, तो पीकेडब्ल्यू की हो जाएगी 14। द वैल्यू ऑफ केडब्ल्यू इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मैंने बताया था केडब्ल्यू की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है, और केडब्ल्यू की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली पीएच स्केल चेंज होगा। पीएच स्केल क्या होगा, चेंज होगा। अभी तो हमने 25 डिग्री सेल्सियस पर वो बना रखी है। क्लियर? लेट्स मूव टू द बफर कैपेसिटी। बफर सॉल्यूशन के बारे में बता देता हूं। बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है विच रेजिस्ट द चेंज इन small amount of pH, which resists the change in pH when small amount of acid and bases are added to it। ठीक है, जब भी हम थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस ऐड करते हैं किसी बफर सॉल्यूशन में, तो वहां पर कोई पीएच में चेंज नहीं होता। फाई से इसको बफर कैपेसिटी को डिनोट करते हैं। फाई क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड या बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, चेंज इन पीएच। फाई बफर कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी हम निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडिड टू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और वहां से हम उसकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं, मतलब चेंज इन पीएच की कैपेसिटी।
नेक्स्ट आती है सॉल्युबिलिटी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयंस ऑन नंबर ऑफ कॉमन आयंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयंस, और आप कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉमन आयंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट आर और नंबर ऑफ कॉमन आयंस, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस के या फिर नंबर ऑफ कॉमन आयंस की। अब बात आती है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, किस तरीके से लिखे हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी आपका कंपाउंड है तो उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, जनरली KSP की एक्स की पावर एक्स, वाई एस की पावर वाई, मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर एक्स और वाई की पावर वाई बन गया, और इनटू में आ गया एस की पावर एक्स प्लस वाई। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने AB3 टाइप का ले लिया तो ये बन जाएगा A पॉजिटिव 3B नेगेटिव। इसकी सॉल्युबिलिटी एस, इसकी एस, इसकी 3S। अगर मुझे KSP लिखना है तो A पॉजिटिव की कितनी S और 3B नेगेटिव की कितनी 3S का होल क्यूब। तो KSP कितना आ गया, KSP आ गया S इंटू 3 3 जा 90 3 जा 27 S क्यूब। तो कितनी वैल्यू आ गई है 81, सॉरी कितनी वैल्यू आ गई 27 S4, 27 S4। नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर बात करें तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जो मैंने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में आपको बताना था कि जहां H को हम डिनोट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट टेकन। जैसे हम अल्फा बोल रहे थे वहां पे H बोलेंगे। तो H क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड, जितना हाइड्रोलाइज हो चुका है इसका फ्रैक्शन है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सॉल्ट टेकन। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात करें, मान लीजिए आपने वीक एसिड CH3COOH ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लिया, तो होगा क्या, जो KH होगा वो KW/Ka होगा, जो H है वो क्या होगा अंडर रूट KW/Ka इंटू C। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, दीज आर ओनली फॉर्मूलाज, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला, सो दैट यू कैन नोट डाउन दीज फॉर्मूलाज, देन यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस वेरी इजीली एंड यू विल नॉट फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। दैट्स माय एजेंडा। pH क्या होता है, pH हेंडरसन हेजलवेच इक्वेशन भी हम पढ़ेंगे, 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ लॉग C, हाफ लॉग C। नेक्स्ट जो आता है वो आता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl और वीक बेस जैसे कि NH4OH, ठीक है, उसके लिए KH क्या होता है KW/Kb। तो पीछे भी KH क्या था KW/Kb। H क्या होता है अंडर रूट KW/Kbc, यहाँ पे क्या था अंडर रूट KW/Kac। तो जहां एसिड स्ट्रॉन्ग है वहां, जहां क्या एसिड स्ट्रॉन्ग है वहां पे क्या लिया जाता है Kb, और जहां पे बेस स्ट्रॉन्ग है वहां पे क्या लिया जाता है K। यहाँ पर हो जाता है pH 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ लॉग C, माइनस हाफ pKb और माइनस हाफ लॉग C। नेक्स्ट आपका आ जाता है वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट। वीक एसिड और वीक बेस का अगर मैं सॉल्ट बोलूं तो KH की वैल्यू दोनों पर डिपेंड करेगी, मतलब KH इज इक्वल टू KW और अपॉन Ka इंटू KB, KW अपॉन Ka इंटू KB। H की वैल्यू क्या होगी, H की वैल्यू होगी KW अपॉन Ka इंटू KB, और pH की वैल्यू क्या है, pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pK माइनस pKb। ये pH जो हमने कैलकुलेट किया है ये किसके लिए कैलकुलेट किया है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। अगर मैं इसी फॉर्मूले को POH में चेंज करूं तो pH हो जाएगा 14 माइनस pH, मतलब 14 माइनस 7 प्लस हाफ pKa माइनस माइनस हाफ pKb। तो क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो अब सॉल्व करना होगा 14 माइनस 7 माइनस हाफ pKa प्लस 1/2 pKb, 1/2 pKb। 14 माइनस 7 कितना हो गया 7 माइनस हाफ pKa प्लस हाफ pKb। इस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।